and this has got to do with the opposition or the India Front allies who are going to be meeting at 9:30 a.m. tomorrow. This is a daily meeting which takes place to chalk out the strategy. But Arunima, tomorrow will be significant because one, the Delhi ordinance, if it comes up, and the second, of course, is that they are back fresh from Manipur. Yes, absolutely. And we'll have to wait and see what new strategy they come up with. They've tried the Kala Kapda protest. They've worn black cloths and protested. They've taken out Dharna. Sanjay Singh continues to sit outside, sometimes at the Gandhi statue, other times at gate number 1. The other opposition members have raised this matter. Derek O'Brien, for example, in Rajya Sabha has been aggressively taking on the chair that led to the Rajya Sabha adjournment the last time around. Mallikarjun Kharge has alleged that his mic has been switched off. So what next can the opposition come up with? What is the new strategy that they have to get the Prime Minister, like they're saying, that they want the Prime Minister to speak on Manipur? So other than no confidence, is there anything else that they're planning? That is what they will decide at 9:30 when they meet. All right. Thank you very, very much, Arunima. You and I are going to be there very much inside Parliament, and just goes on to show there's going to be no sign of any kind of a rapprochement between the two sides. But let's listen in to all the reactions, especially of those leaders who went to Manipur for a 2-day visit as a part of a delegation to sort out the problem over there. दर्दनाक 2 दिन हमने गुजारे, जो लोगों पे जो बीती है उसको लेकर हम बहुत मायूस हुए हैं और बार बार आज भी हमने गवर्नर के साथ मीटिंग करते हुए बोला कि भारत सरकार प्रधानमंत्री की नेतृत्व में एक ऑल इंडिया ऑल पार्टी डेलीगेशन आए। ये सुझाव हमने पहले दिन से हम दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गायब है, उनके मंत्रिमंडल दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं। मेरा तो सुझाव ये है कि वो मणिपुर में जाके वहां की जमीन की परिस्थिति देख के आए। No, there is no political will, and the government is not ensured that there is peace there as yet. And even yesterday in Bishnupur, after we visited there, I think there has been no incidents of attack and firing. Women are sitting in Dharna in different parts of the places, and more than that, students cannot go back to colleges, universities are not working, schools are not there, and camps are in a pathetic condition. It's really bad. Yes. No, we have expressed our concern to the governor, and the governor has said that she is also very concerned about what is happening there, and she also wants us to tell the union government about what we've seen. जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 संसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे संसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए हैं। जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, हमारी बात पे सहमत जताई। तो ये देखिए पॉलिटिकल टूरिज्म है, घूमने चले गए और 2.5 महीने के बाद गए। घटना तो मई से चल रही, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, तो विपक्ष को 3 महीने के बाद आया मणिपुर की यात्रा करना। प्रधानमंत्री से बढ़कर तो कोई है नहीं, क्यों नहीं जा रहे मणिपुर? हिम्मत नहीं है क्या? वहां आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते? जहां वोट मांगने गए थे वहां दिलासा देने नहीं जा पा रहे, तो ये कमजोरी किसकी है? इन्हें दिक्कत है, हम क्यों जा रहे हैं? हमारा सवाल है, आप क्यों नहीं जा रहे? बार बार भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अलग अलग अधिकारियों ने कहा है कि मणिपुर के ऊपर हम पूरी चर्चा करने को तैयार हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों भाग रही है? क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी है। उन्हें ना मणिपुर की चिंता थी, ना है, ना नॉर्थ ईस्ट की थी, ना है, ना ही भारत की। तो मोदी जी तो पूरी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए वहां पर जा रहे हैं। रील करवानी है, थोड़ी फोटो करवानी है, खिंचवानी है, पूछेंगे अगल बगल से क्या बोलना है, वो करेंगे। यहाँ पर भी आदिवासियों से जो मिलने आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं, फोटो खिंचवानी है, रील खिंचवानी है। मतलब वो कमेटी बना के छत्तीसगढ़ में जाए तो ठीक है, और यदि इंडिया यदि टीम बना के चल दे तो दिखावा है, और वहाँ तो स्थिति ठीक कर लेना। अभी भी 90 दिन हो गया है, मणिपुर जल रहा है, और उसको रोकने के डबल इंजन सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। अब वो बहाने ढूंढ रही है, वो चीन का, इसका, उसका। मतलब ये है कि आप सुधार नहीं सकते तो दूसरे पर दोष मत दो। मणिपुर से कोई लेना देना नहीं,
इनको सिर्फ राजनीति करनी है। अगर इनको मणिपुर से लेना देना होता, चिंता होती मणिपुर की, तो ये संसद में जब सरकार इस पे विचार कर करके बहस करने के लिए तैयार हैं, संसद में डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, तो संसद में ये आकर के क्यों नहीं बोल रहे? चुनाव के और इस हिंसा के बाद एक बार भी नहीं गए कि 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसमें भी राजनीति करते हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ का जिक्र लेके आते हैं। मोदी जी धृतराष्ट्र भी हैं और कुंभकर्ण भी हैं। कुंभकर्ण को बड़े प्रयास से जगाया जाता था, मोदी जी के आगे सारे प्रयास फेल हो चुके हैं। मानसून सत्र एक हफ्ते से विपक्ष का भूमिका किस तरह सदन चलने नहीं दे रहे, पूरा देश आज देख रही है, क्योंकि आज मोदी जी और सरकार विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं चर्चा के लिए हम तैयार हैं, मगर विपक्ष नहीं चाहते कि चर्चा होना चाहिए। इसलिए हमारा जैसा संसद जो जन के मुद्दे जो है हम सदन में जब उठाना चाहते हैं प्रश्न के रूप में या स्पेशल मेंशन के रूप में, जीरो आवर के नाते हम तैयार करके आते 10-15 दिन से, मगर मौका ही नहीं देते विपक्ष के नेता, क्योंकि उसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। सीएम पर सवाल सबका है, मैती समुदाय का भी है, कुकी का भी है, नागा का भी है। ये पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर साहब शायद अपने बंगले के बाहर के चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन लोग चाह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस, जो इनके रहते नहीं हो सके। अरे इंडिया नाम से कोई मतलब नहीं है, इंडिया नाम से कोई मतलब नहीं है। ये कुछ परिवारवादी और भ्रष्टाचारी का जोट है। ये लोग ईडीआई या सीबीआई को रोकने के लिए एक हुआ है। इसका कॉमन मिनिमम एजेंडा है टू रेजिस्ट CBI and ED, nothing else.